Hello everyone. Today I am going to start our next topic, that is called a bleaching powder. So firstly I am going to discuss about what is the name of this compound. The name of this compound that is called a bleaching powder, or we can say that it is also known as calcium oxychloride. So now I am going to discuss about how to prepare this compound and what is the chemical properties of this compound. So firstly I am going to discuss about how to prepare this compound. तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए यानी प्रिपरेशन मेथड जो होता है कि when calcium hydroxide or we can say that is a lime water, when lime water or calcium hydroxide is react with chlorine gas, then it will be converted into the calcium oxychloride and separate the water. So that is the preparation method of the bleaching powder. तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो when calcium hydroxide or lime water is react with chlorine gas, then it will be converted into the calcium oxychloride. It is also known as bleaching powder and separate the water. That is the preparation method of the bleaching powder, or we can say that that is the preparation method of the calcium oxychloride. And next property, what is the chemical property? तो chemical property जो होती है अगर हम देखा जाता है या हम अगर पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये देखने में कैसा दिखता है? तो ये देखने में होता है येलोइश वाइट येलोइश कलर का पाउडर होता है एंड अगर हम वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी अगर हम एक ग्लास कोल्ड वाटर ले लें और उसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ब्लीचिंग पाउडर उसमें ऐड कर दें तो दैट इज अ सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, यानी ये जो ब्लीचिंग पाउडर होगा वो आपका कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होगा और किस कलर का दिखेगा? तो येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर होगा. तो नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज रिएक्ट विद एयर में किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो इट विल बी रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो नेक्स्ट जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट मींस दैट इज अ ब्लीचिंग पाउडर, इज रिएक्ट विद एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड रिलीज द क्लोरीन गैस. So when bleaching powder is react with air, यानी when calcium oxychloride or bleaching powder is react with carbon dioxide, then it will be converted into the calcium carbonate and release the chlorine gas. Next chemical property, when bleaching powder is react with acid, dilute acid. तो second है आपका when bleaching powder is react with dilute acid. तो dilute acid तो मैंने यहाँ पे HCl लिया हुआ है, तो dilute acid, then it will be converted into the calcium chloride, release the chlorine gas and separate the water. So when calcium oxychloride, or we can say that bleaching powder is react with hydrochloric acid, then it will be converted into the calcium chloride, release the chlorine gas and separate the water. अगर हम ये dilute HCl की जगह हम dilute H2SO4 ले लेते हैं, in that condition क्या होगा? तो suppose when calcium oxychloride, it means that is a bleaching powder, it will be react with dilute H2SO4. तो जो भी एसिड या उससे रिलेटेड सॉल्ट बन जाएगा तो ये कैल्शियम SO4 के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द CaSO4, release the chlorine gas and separate the water. यानी ब्लीचिंग पाउडर अगर किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी एंड वाटर सेपरेट होगा. जैसे मैंने ये केसेस दिए कि व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
is react with dilute H2SO4, then it will be converted into the calcium sulfate, release the chlorine gas and separate the water. तो ये तो सिंपल अगर पूछता है कि when bleaching powder is react with dilute acid, तो आपका यही बनेगा, सॉल्ट बनेगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी एंड वाटर आपका सेपरेट हो जाएगा. लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है when bleaching powder is react with insufficient amount of acid, in that condition क्या होगा? तो ये हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज अ थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी और फोर्थ जो भी होगा नंबर. तो उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा अगर ब्लीचिंग पाउडर आपका इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. तो फिर हम इसमें देख लेते हैं कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड, सपोज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज रिएक्ट विद, ये हमारा है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड, हम यहाँ पे लिख दें इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड. इन दैट कंडीशन क्या होगा कि व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज रिएक्ट विद इनसफिशिएंट amount of acid, then it will be converted into the calcium sulfate, calcium chloride and hypochlorous acid, that is called a hypochlorous acid. यानी अगर हम कभी भी अगर ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड के में कराते हैं, इन दैट कंडीशन इनसफिशिएंट अमाउंट हमने H2SO4 लिया हुआ, तो ये क्या होगा कि H2SO4 कुछ अमाउंट जो होगा वो कैल्शियम के साथ रह करके कैल्शियम सल्फेट बना देगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और इसके अलावा हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा. और यही हाइपोक्लोरस जो एसिड होता है यानी जो दैट इज कॉल्ड अ हाइपोक्लोरस एसिड, ये जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड में और यहीं से हमारा नेसेंट ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड अ नेसेंट ऑक्सीजन, ये यहाँ से रिलीज होता है. अभी नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? तो नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न और ऑक्सीजन यानी न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगी और इसी को हम बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन. इसी वजह से हम कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. तो देख लो फिर से ये एक बार कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज रिएक्ट विद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड, हमने एसिड लिया हुआ H2SO4, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. यही हाइपोक्लोरस एसिड जो है फर्दर ब्रेक होता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड रिलीज द सेपरेट या रिलीज द नेसेंट ऑक्सीजन यानी न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन जो होगा वो इवॉल्व करे. इसी वजह से ये न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन इवॉल्व होने की वजह से हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? यूजेस क्या होंगे ब्लीचिंग पाउडर के? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है डिसइंफेक्टिंग वाटर में, ठीक है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? एज अ ब्लीचिंग एजेंट वर्क करता है और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये वर्क करता है. इसके अलावा इसका यूज हम क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन मेथड में भी करते हैं. तो नाउ नेक्स्ट सॉल्ट दैट इज कॉल्ड अ POP. Firstly, I am going to discuss about what is the full form of POP. So POP, that is a plaster of Paris, and the chemical formula of POP, that is a CaSO4 dot half H2. तो next salt हमारे क्या है? वो है POP. What is the full form of POP? तो POP, the full form of POP, that is a plaster of Paris, and the chemical formula of POP, that is a CaSO4 dot half H2. देखा होगा हमारे घर में जब पुट्टी करने के लिए वॉल पे आता है तो वो जो पाउडर होता है वो कैसा हल्का सा मॉइस्ट लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है. और जो आपका POP होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ POP पाउडर? सो दैट इज अ व्हाइट कलर. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर दिस सॉल्ट. तो फर्स्ट दैट इज अ प्रिपरेशन मैथड, एंड प्रिपरेशन मैथड में क्या करते हैं? जिप्सम को हम व्हेन वी हीट द जिप्सम. अब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 dot 2H2, दैट इज कॉल्ड द जिप्सम. ओके, तो
व्हेन वी हीट द जिप्सम, यानी जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे, ये भी ध्यान रखना, व्हेन वी हीट द जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पीओपी, पीओपी यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा, 1.5 मोल ऑफ वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो प्रिपरेशन मेथड बस एक ही है इसका कि कैसे, हाउ टू प्रिपेयर द पीओपी। तो व्हेन वी हीट द जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, then it will be converted into the POP and separate the water. That is the preparation method of POP. And next, the chemical properties of POP. तो यानी chemical properties क्या होगी POP की? तो chemical properties होगी, अगर यही POP अगर आप इसको रिएक्ट करा लेते हैं वाटर के साथ, then it will be converted into the gypsum. तो chemical properties देख लेते हैं POP का। एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक ही प्रिपरेशन मेथड भी है और एक ही केमिकल प्रॉपर्टी भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, व्हेन पीओपी इज रिएक्ट विथ वाटर, यानी पीओपी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द CaSO4 डॉट 2H2, that is called a gypsum. ठीक है, तो दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है कि व्हेन पीओपी को अगर हम पीओपी में अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द जिप्सम। देखा होगा वॉल पे जब हम पुट्टी करना होता है तो वाटर हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद इस वॉल पे अप्लाई करें, तो अप्लाई जब कर लेते हैं कुछ दिनों के बाद वो सेट हो जाता है, तो यानी सेट हो गया मतलब दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द जिप्सम। ठीक है, व्हेन पीओपी इज रिएक्ट विद वाटर देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द जिप्सम, दैट फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट 2H2। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो अगर हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे जिप्सम को, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जिप्सम को मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में पर हीट करते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डेड बर्न प्लास्टर, यानी जितना वाटर उसमें अवेलेबल था वो सारा का सारा वाटर बाहर निकल जाएगा, यानी अनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, या फिर हम उसे डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। तो उसकी रिएक्शन देख लो कि व्हेन वी हीट द जिप्सम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जिप्सम को अगर हम CaSO4 डॉट 2H2 इसके यानी जिप्सम, इसको अगर हम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस यानी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हम जिप्सम को मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो इसमें जितना भी वाटर अवेलेबल था वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, यानी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द CaSO4 प्लस वाटर, यानी वाटर सेपरेट, एंड दैट इज कॉल्ड अ डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, यानी अगर हम जिप्सम को मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो जिप्सम में अवेलेबल जितना भी वाटर होगा वो सारा का सारा सेपरेट हो जाएगा, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। और जितना भी वाटर होगा उससे वो बाहर निकल जाएगा, उस जिप्सम में अवेलेबल वाटर सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से ये जिप्सम जो होगा डेड बर्न्ड प्लास्टर यानी अनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द यूज ऑफ पीओपी। यूजेस क्या होंगे पीओपी के, तो फर्स्ट यूज होता है टू सेट द फ्रैक्चर्ड बोन। देखा होगा अगर किसी का हाथ पैर टूट जाता है, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करते हैं, उसमें प्लास्टर लगा देते हैं। तो पहला यूज यही है
कि पीओपी क्या करता है, जो बोन फ्रैक्चर होती है उनको सेट करने पे हेल्प करता है, प्लास्टर लगा करके हम उसको सेट करते हैं. सेकेंड यूज इज टू प्रिपेयर द डेकोरेटिव आइटम्स, एंड थर्ड यूज इज टू मेकिंग अ पॉट और सिरेमिक्स, एंड नेक्स्ट यूज, लास्ट यूज, दैट इज टू प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम. ठीक है, जिप्सम के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है. तो दैट इज द पीओपी. और इससे ये चैप्टर जो हो गया यही अब खत्म हो गया. और इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर में से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू. थैंक यू.